Hello and welcome, my dear friends. Today we'll talk about isomerism in organic compounds. This is the next chapter in General Organic Chemistry GOC. Previously, we talked about two chapters. One was on the basis of the common system of naming in organic compounds. Next was the IUPAC system of naming organic compounds. And third, we will be talking about the isomerism in organic compounds. So, before we study this topic, I must tell you one thing. If you are new to my channel, please do not hesitate to subscribe it. And if you like my videos, please share it also. And moreover, I just want to add one more thing. Before going into the isomerism chapter, I would like to tell you, please read IUPAC system of naming organic compounds, which will help you in identifying what are the isomers, whether they are chain isomers, position isomers. You can easily identify them by means of naming those compounds. So anyways, let's not waste much time. Let's switch on to the topic, that's isomerism in organic compounds. So what do you mean by isomerism? We will be having two or more compounds having same molecular formula, but different properties. चाहे वो प्रॉपर्टीज फिजिकल हो या केमिकल हो, वो प्रॉपर्टीज डिफरेंट है. इन कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं आइसोमर्स. वी कॉल देम आइसोमर्स. एंड द फिनोमेना is called isomerism. And the phenomena is called isomerism. I hope you understand it. So हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स है. उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम होना चाहिए, but they must differ in properties. We call those compounds as isomers. और जो फिनोमेना है उसका नाम है isomerism. For example, let's take an example. हमारे पास एक कंपाउंड है that is CH3 single bond CH2 single bond OH. This is an alcohol. And next is CH3 single bond O single bond CH3. This ether. तो ये जो कंपाउंड है this is alcohol. And ये जो है it's ether. Because there is ether functionality and here it is the hydroxy functionality. ये भी हम लोग ने पढ़ा है इन IUPAC सिस्टम ऑफ नेमिंग में, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं और उनका जो है नेमिंग हम कैसे कराते हैं. यू कैन वॉच दोज वीडियोज. द लिंक्स हैव बीन प्लेस्ड इन द डिस्क्रिप्शन. तो इसका प्रॉपर्टी क्या है? अल्कोहल्स का ये प्रॉपर्टी है कि दे आर गिविंग ल्यूकास टेस्ट. सो इट गिव्स Lucas test. Means it reacts with the zinc chloride and HCl. This is called Lucas reagent. So it reacts with them to form alkyl halides, but there is no such reaction with ethers. So do not give this test. Next is they are not air explosive. एटमॉस्फेयर में या एयर में ये एक्सप्लोसिव नहीं होते हैं, बल्कि अगर आप बात करेंगे ईथर्स की, दे आर एयर एक्सप्लोसिव. सो इंडिकेटिंग दैट अगर आप इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे इन दो कंपाउंड्स का, इसका है C2H6, ये 3 है, 3 2 हो गए 5, 5 और 1 हो गए 6, 6 and there is 1 O. So this is the molecular formula of this compound, and this is also the same molecular formula of this compound. So when the two compounds are having same molecular formula but they differ in properties, we call them isomers.
These two compounds are called as isomers, and this phenomena of showing isomerism is showing these isomers is called as isomerism. I hope you understand it. I hope you understand it. Now, ये जो isomerism है, this is broadly classified into two categories. So broadly classified into two categories. Number A is structural isomerism, and number B is space isomerism, space और stereoisomerism. So एक तो है space isomerism, दूसरा है structural isomerism. Structural isomerism वो वाला isomerism है in which the isomers differ in structure. So here isomers differ in structure. Isomers differ in structure. So we'll be talking about first structural isomerism. उसके बाद हम बात करेंगे space isomerism की once we finish structural category. So in structural isomerism ये वो वाले isomers हुआ करते हैं जिनका molecular formula same है लेकिन वो differ होते हैं in structure. They differ in structure, we call them structural isomerism. अब structural isomerism में अपने types है. It's the following types. उसमें नंबर एक टाइप आता है chain isomerism. Then there is position isomerism. Then we have functional isomerism. Then there is metamerism. Then there is finally tautomerism. There is one more we often talk about is ring chain isomerism. So we'll be talking about these one by one now. So what is chain isomerism? What do you mean by position? How can you identify them? कैसे आप बता सकते हैं कितने आइसोमर्स किस में हैं और कौन कौन से हैं? ये सारा हम पढ़ेंगे hopefully in these coming videos also. And in this particular video we'll be talking about chain isomerism. So what is chain isomerism? नंबर फर्स्ट हम लेंगे chain isomerism. चेन आइसोमेरिज्म में आपको जो है तीन बातों का ख्याल रखना है. सो थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज चेन आइसोमेरिज्म इज कंसर्न्ड. नंबर वन इज इस आइसोमेरिज्म में जो मदर चेन है या पेरेंट चेन है या फिर जिसको हम बोलते हैं मेन चेन, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था इन IUPAC सिस्टम ऑफ नेमिंग द यू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन. सो दैट इज द पेरेंट चेन, दैट इज द मदर चेन, दैट इज द मेन चेन. सो वो मेन चेन जो है या मदर चेन बोलेंगे या फिर पेरेंट चेन बोलेंगे, दैट मस्ट बी डिफरेंट. सो हम बात करेंगे, तीन बातों का ख्याल रखना है. नंबर फर्स्ट इज मेन चेन या उसका हम नाम बोलते हैं पेरेंट चेन, और वी कैन से मदर चेन. दैट मस्ट बी डिफरेंट. ये एक इंपॉर्टेंट बात है. सो ये जो चेन आइसोमेरिज्म है या चेन आइसोमर्स कब बनते हैं, उनमें क्या खासियत होनी चाहिए. द फर्स्ट पॉइंट इज उन दो आइसोमर्स का या दो या ज़्यादा होंगे अगर होंगे तो उनमें जो मेन चेन है या पेरेंट चेन नाम बोलते हैं या मदर चेन, वो डिफरेंट होना चाहिए. पॉइंट नंबर सेकंड, दे मस्ट बिलोंग टू सेम क्लास. उनका क्लास जो है दैट मस्ट बी सेम. They must belong to same class. What do you mean by same class? मतलब ये कि अगर एक आइसोमर अल्केन का होगा तो दूसरा भी अल्केन का ही होना चाहिए. अगर एक अल्कोहल का होगा तो दूसरा भी अल्कोहल का ही होना चाहिए. So same class means if alkane alkane, alkene alkyne, alkyne alkyne, then there's alcohol alcohol. So whatever is the isomer of one class must be the isomer of the same class. So class same होना चाहिए, चाहे अल्कोहल कैटेगरी है या ईथर कैटेगरी है या फॉर एग्जाम्पल कोई भी फंक्शनलिटी आप ले सकते हैं. सो क्लास मस्ट बी सेम. दे मस्ट बिलोंग टू सेम क्लास. दे मस्ट बिलोंग टू सेम अल्केन्स. दे मस्ट बिलोंग टू अल्कीन कैटेगरी. ऐसा नहीं है कि एक जो है मॉलिक्यूल वो अल्केन का है, दूसरा जो है वो अल्कीन का है, तो उन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो आप बोलेंगे चेन है. नहीं, दे मस्ट बिलोंग टू सेम क्लास.
सो अगर एक आइसोमर अल्केन का है दूसरा भी अल्केन का ही होना चाहिए. सो विल बी गिविंग यू एग्जाम्पल्स टू इलस्ट्रेट इट फर्दर ऑन फ्रॉम शॉर्ट वाइल. सो क्लास सेम होना चाहिए लेकिन मदर चेन पैरेंट चेन या मदर चेन डिफरेंट होना चाहिए. और नेक्स्ट इज पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड मीन्स डबल और ट्रिपल. पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड वो भी सेम होना चाहिए. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. So 3 things are very important over here. The first point is mother chain must be different, class must be same, the functional groups if present or the multiple bonds if present, the position of those must be same in all the molecules. जब ये conditions आपको fulfill हो जाएंगी तब जो है वो isomers chain isomers बनेंगे and the phenomena will be called as chain isomerism. I hope you understand it. Let's have some examples to illustrate it further. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3. दिस इज कॉल्ड एज ब्यूटेन. ठीक. नेक्स्ट मॉलिक्यूल इसका क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3. यहां पे CH3 है. सो यू कैन सी इसमें 4 कार्बन थे मेन चेन में. सो दैट्स व्हाई वी हैव ब्यूटेन. इसका नाम अगर आएगा 1 2 3 तो मेन चेन ये बनेगी. ये बनेगा 2 मिथाइल प्रोपेन. मतलब ये कि इसका जो है वर्ड रूट ब्यूट आया मतलब 4 कार्बन्स आर इन द मेन चेन. इसका वर्ड रूट प्रोप आया मतलब 3 कार्बन्स इन द मेन चेन. सो मेन चेन में जो कार्बन्स है वो डिफरेंट है. मेन चेन इज डिफरेंट. सो एक कंडीशन फुलफिल हो गई. व्हाट इज दैट कंडीशन? सो मेन चेन या पैरेंट चेन मदर चेन मस्ट बी डिफरेंट. वो तो है ही. दैट इज डिफरेंट. 4 कार्बन का चेन है यहाँ 3 ही कार्बन का चेन है तो दैट्स डिफरेंट. ये अल्केन है ये भी अल्केन है तो सेकंड कंडीशन इज आल्सो सेटिस्फाइड. सेम क्लास. थर्ड सिंस देयर इज नो फंक्शनल ग्रुप एट ऑल तो ये कंडीशन इस पे अप्लाई नहीं होगी. सो वी हैव these two, they are called as chain isomers. This is the first category. So they are chain isomers. क्यों? क्योंकि इनमें जो है मदर चेन वो डिफरेंट है और ये बिलोंग करते हैं सेम क्लास में. अगर इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप होता तब उसका पोजीशन भी सेम होना चाहिए. वन मोर एग्जांपल आई विल गिव यू, दैट इज हियर. इसका आप दूसरा नाम भी दे सकते हैं आइसोब्यूटेन कॉमन सिस्टम में. So we have butane and isobutane. Anyways, next is CH3 single bond CH2 single bond CH2 single bond CH2 single bond CH3. ये 5 कार्बन्स हैं मतलब पेंटेन है ये. This is pentane. And next is CH3 single bond CH CH2 single bond CH3. इसमें CH3 this is called as 2 methyl pentane 2 methyl butane sorry 1 2 3 4 ये मेन चेन ये बनेगी इस वक्त. So 2 methyl butane. और नेक्स्ट इज CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3. ये मेन चेन बनेगी 3 कार्बन्स की. बनेगा 2 डाइमिथाइल 2 डाइमिथाइल प्रोपेन. अब देखेंगे यहाँ मेन चेन 3 ही कार्बन्स की है. यहाँ 4 कार्बन यहाँ 5 कार्बन. सो मेन चेन डिफर्स. वन इज द मेन चेन डिफर्स बट दे बिलोंग टू सेम क्लास. ये भी अल्केन है ये भी अल्केन है ये भी अल्केन है. Since there is no functional group at all, so we need not to look for the third condition. So the conditions are satisfied. So what they are called chain isomers. They are chain isomers. Next example हम लेंगे. हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3. नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3. अब देखेंगे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनता है. एक कार्बन 2 3 4 सो इट इज C4. 2 और हो गए 3 हाइड्रोजन 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन सो H8. दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अब इसका देखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. इट इज C4 अगेन 1 2 3 4 कार्बन 3 + 3 6 6 + 2 is 8 so H8. so they are having same molecular formula. now the point is अब देखिए इसमें क्या है. ये मेन चेन है. So in this main chain there are 4 carbons. अगर आप नाम लिखेंगे तो ब्यूट 1 इन आएगा. ठीक. अगर इसमें देखेंगे मेन चेन ये आएगा तो ये बनेगा 2 मिथाइल प्रोप 1 इन. तो मसला ये है कि इसमें
इसमें मदर चेन 4 कार्बन का है, इसमें मदर चेन 3 ही कार्बन का है. सो मदर चेन डिफर्स. सो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइज. नेक्स्ट कंडीशन इज दैट दे बिलोंग टू सेम क्लास. ये भी अल्कीन है, ये भी अल्कीन है. सो दे बिलोंग टू सेम क्लास. सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड. एंड द थर्ड कंडीशन इज if there is multiple bond or functional group that must be having same position. अगर आप यहां पे देखेंगे, इसमें डबल बॉन्ड है पोजीशन नंबर 1 पे, इसमें भी डबल बॉन्ड है पोजीशन नंबर 1 पे. So one double bond is there and they are having same position. So all the 3 conditions are satisfied. So what they are called chain isomers. They are called chain isomers. Similarly, one more example I should write here, that is CH3 single bond CH2, single bond CH2, single bond CH2, single bond OH. So this is one molecule. Next is CH3 single bond C. Then there is here CH3. Then there is CH2OH. अब देखिए यहाँ molecular formula is 1 2 3 4 कार्बन. So C4H कितने हैं? 3 2 हो गए 5 5 2 7 7 2 9 9 और 1 10. H10 and there is O. इसमें देखिए आप C4 1 2 3 4 कार्बन. 3 plus 3 is 6 7 8 9 10. So H10 and there is one O. So they are having same molecular formula. अब मसला क्या है? अब मसला ये है कि इसका मेन चेन ये बनेगा. सो ये बनेगा ब्यूटेन 1 ऑल. तो इसमें मदर चेन ये बनेगा. सो इट्स 2 मिथाइल, क्योंकि ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है. सो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल. अब देखिए यहां मदर चेन 3 ही कार्बन का है, यहां मदर चेन 4 कार्बन का है. सो मदर चेन डिफर्स. कंडीशन नंबर 1 इज सेटिस्फाइड. सेकंड कंडीशन इज दे मस्ट बिलोंग टू सेम क्लास. ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, तो दे आर बिलोंगिंग टू सेम क्लास. द थर्ड कैटेगरी इज ये फंक्शनल ग्रुप जो यहां पे है, इट्स एट द कार्बन नंबर 1. सो ये फंक्शनल ग्रुप जो यहां पे है, इट्स आल्सो एट द कार्बन नंबर 1. सो दे आर हैविंग सेम पोजीशन. सो ऑल द 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, इंडिकेटिंग दैट द 2 isomers आर chain isomers. I hope you understand it. I hope you understand it. Next हम लिखेंगे कुछ examples again. So हमारे पास suppose है ये वाली example. So we're having here cyclobutane. Next is here this. Yeah. अच्छे से हम बनाएंगे, विल मेक इट इन अ नाइस वे. ये साइक्लोप्रोपेन है लेकिन 1 मिथाइल करके. सो इट्स 1 मिथाइल. ये यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच है. प्रोपेन साइक्लोप्रोपेन, सॉरी 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन. तो यहाँ पे है, यहाँ पे मेन चेन 4 कार्बन का है, यहाँ पे मेन चेन 3 ही कार्बन का है, बिकॉज इट साइक्लोप्रोप, it is cyclobute. So there are 4 carbons in the main chain. There are only 3 carbons in the main chain. So the mother chain differs. Point number 1. Point number 2 is it is both belong to cyclic category, both belong to alicyclic compounds. So they are having same class. And the point is same class is there. Mother chain is there. There is no functional group at all. So third condition does not apply. So what they are? Chain isomers. They are basically chain isomers. Next हमारे पास है, अगर आपके पास सपोज ये एक रिंग है यहाँ, दिस इज साइक्लोब्यूटेन. इसका फार्मूला जो है दैट इज C4H 2 2 4 हो गए 8, C4H8. आपका जो नेक्स्ट है दैट इज दिस. तो इसमें कितने हैं? इसमें है C4H 3 2 हो गए 5 5 6 6 2 हो गए 8, C4H8. So they are having same molecular formula, but they are not called chain isomers. Why? Because this is the alkane category, cycloalkane category, and this is alkene category. So they do not belong to same class. One is they do not belong to same class. They are not chain isomers. They are strictly not chain isomers. I hope you understand it. Now, how can you find? One more example I should give you. One more example I should give you to illustrate it further on. Suppose आपके पास है CH3 single bond CH2, single bond CH2, single bond CH2, single bond CH2, single bond CH3. तो ये जो है 1 2 3 4 5 6 कार्बन है. So it's hexane. Next is CH3 single bond CH.
5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गए. नेक्स्ट थर्ड इज this is A, this is B, and this is C. That is here C, and D is here. We have CH3 single bond CH2. यहाँ पे हम मिथाइल डालेंगे, तो यहाँ पे हम मिथाइल डालेंगे. नेक्स्ट विल प्लेस हियर मिथाइल. 1 2 3 4 5 6. वी आर हैविंग E नाउ. 1 2 3 4 5 और 6. सो सपोज ये हमारे पास है. अब देखिए आप यहाँ इसमें मदर चेन कितने कार्बन्स की है. सो वी हैव 6 कार्बन्स इन मदर चेन. इसमें मदर चेन कितने कार्बन्स की है, 5 कार्बन्स की. इसमें मदर चेन कितने कार्बन्स की है, 5 कार्बन की. 1 2 3 4 5. इसमें मदर चेन कितने कार्बन्स की है, 1 2 3 4. सो इट्स 4 कार्बन मदर चेन. इसमें मदर चेन कितने कार्बन्स की है, 4. तो मतलब ये कि अब कौन कौन से चेन आइसोमर्स है. क्लियरली 6 इज द चेन आइसोमर ऑफ ऑल. कैसे, अगर 6 हम ए वाला हम कंपेयर करेंगे सबसे. सो इसमें ए वाले में कितने हैं. सो हम लिखेंगे ए बी ए सी, ए और सी बी, ए और डी बी, और ए और ई बी. ये सारे चेन आइसोमर्स हैं. दे आर ऑल चेन आइसोमर्स. कैसे, ए बी कैसे है, इसमें 6 कार्बन्स हैं, इसमें 5 ही कार्बन है. सो मदर चेन डिफर्स, बिलोंग टू सेम क्लास, देयर इज नो फंक्शनैलिटी, नो थर्ड कंडीशन डज नॉट अप्लाई टू चेन आइसोमर्स. ए और सी आप कंपेयर कीजिए, 5 ही कार्बन इन द मदर चेन. सो मदर चेन डिफर्स, बिलोंग टू सेम क्लास, चेन आइसोमर्स. ए आप कंपेयर करेंगे डी से, मदर चेन डिफर्स, बिलोंग टू सेम क्लास, चेन आइसोमर्स. ए आप कंपेयर करेंगे ई से, मदर चेन डिफर्स, बिलोंग टू सेम क्लास, चेन आइसोमर्स. अब देखिए अगर आप बी और सी कंपेयर करेंगे, इसमें मदर चेन 5 कार्बन्स की है, इसमें भी 5 कार्बन. सो दे आर नॉट चेन आइसोमर्स. सो बी एंड सी आर नॉट चेन आइसोमर्स, माइंड इट. अगर आप यहां पे देखेंगे डी एंड ई दे आर नॉट चेन आइसोमर्स. क्यों, इसमें भी 4 कार्बन मेन चेन में, इसमें भी 4 कार्बन मेन चेन में. सो दे आर नॉट चेन आइसोमर्स. आई टोल्ड यू मदर चेन और पेरेंट चेन मस्ट डिफर. सो यहां पे सेम है, तो इट्स नॉट चेन आइसोमर्स. अगर आप कंपेयर करेंगे बी विद डी, वो तो मैंने ऑलरेडी बता दिया. सो बी एंड डी अगर आप कंपेयर करेंगे, बी एंड डी दे आर चेन आइसोमर्स. बी एंड ई आर आल्सो चेन आइसोमर्स. कैसे, बी में 5 कार्बन है मदर चेन में, डी में 4 ही है. बी में 5 है, ई में 4 ही है. सो दे आर चेन आइसोमर्स. अगर आप सी कंपेयर करेंगे विद डी एंड ई, दे आर आल्सो चेन आइसोमर्स. सो पॉइंट इज दैट द मदर चेन और द पेरेंट चेन मस्ट डिफर and they must belong to same class, and if there is presence of functional group or multiple bond, उसका पोजीशन जो है वो फिक्स्ड होना चाहिए. तभी आप बता सकते हैं कौन कौन से आइसोमर्स चेन होंगे और कौन कौन से नहीं होंगे. अब हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज हाउ कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ सच आइसोमर्स. सो कैलकुलेट नंबर ऑफ आइसोमर्स. कैसे करेंगे आप ये, आपके पास एक फॉर्मूला है, दैट इज पहले आप 3 मॉलिक्यूल्स याद रखना हाइड्रोकार्बन्स के. विल टेक हाइड्रोकार्बन्स ओनली. हमारे पास फर्स्ट हाइड्रोकार्बन जिसका कार्बन नंबर 1 ही है, तो ऐसे हम करेंगे. जिसका कार्बन खाली 1 ही है उसका आइसोमर 1 ही है, जिसके 2 हैं उसके भी 1 है, जिसका 3 कार्बन है उसके भी 1 है. अब 4 से जो है, सो फर्स्ट 3 कार्बन जो भी हाइड्रोकार्बन आपके होंगे, हाइड्रोकार्बन आई एम टॉकिंग अबाउट, तो उनका जो आइसोमर्स है वो 1 ही है. मतलब देयर इज नो आइसोमेरिज्म एट ऑल इन कंपाउंड्स हैविंग 1 कार्बन और 2 कार्बन और 3 कार्बन. मतलब मीथेन में कोई आइसोमर नहीं है, ईथेन में कोई आइसोमर नहीं है, प्रोपेन में कोई आइसोमर नहीं है. तो आइसोमर स्टार्ट होते हैं ब्यूटेन से. अब कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ आइसोमर्स. आपके लिए फॉर्मूला है, नंबर ऑफ आइसोमर्स इज इक्वल टू, मैं चेन आइसोमर्स की बात कर रहा हूं, चेन आइसोमर्स की, नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स, that is equal to 2 raised power n minus 4 plus 1, and this applies to n is equal to number of carbons, n number of carbon होता है, it applies from carbon 4 to carbon 7. तो कार्बन 4 और कार्बन 7 तक ये अप्लाई होता है, that is 2 raised power n minus 4 plus 1. अब आप अप्लाई कीजिए. हमारे पास पहला कार्बन है, ब्यूटेन है,
फॉर इंस्टेंस हमारे पास ब्यूटेन है कार्बन नंबर 4 वाला, तो ब्यूटेन में कितने होंगे, C4H10 इज ब्यूटेन। तो इसमें कैसे निकालेंगे हम, नंबर ऑफ आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 raised power 4 minus 4 plus 1, that is 1 plus 1 is equal to 0, because 4 minus 4 is 0 and its raised power 0 is 1, तो 2 आइसोमर्स आएंगे यहाँ। सो वी आर हैविंग 2 आइसोमर्स। आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है कौन कौन से 2 हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे देखेंगे इनिशियली ब्यूटेन में एक ये है, दूसरा 2 मिथाइल प्रोपेन है, मतलब ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, दीज आर द 2। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट इज C5H12। तो पेंटेन में कितने होंगे, पेंटेन में वैसे 3 होते हैं, एक तो नॉर्मल पेंटेन, दूसरा आइसोपेंटेन, तीसरा नियोपेंटेन। मैंने ये बता दिया है आपको यहाँ, इफ यू कैन चेक, दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल पेंटेन, दिस इज कॉल्ड एज आइसोपेंटेन एज फार एज कॉमन सिस्टम इज कंसर्न, दिस कॉल्ड एज नियोपेंटेन एज फार एज कॉमन सिस्टम इज कंसर्न। मैंने IUPAC नेम्स लिखे थे यहाँ। तो एनीवेज 3 होते हैं। अब हम देखिए फॉर्मूला के जरिए 3 निकलते हैं कि नहीं। इट्स 5 minus 4 plus 1, दैट इज 2 raised power 1 plus 1, दैट इज 3। तो 3 निकल करके आए। नेक्स्ट इज C6H14, दैट इज हेक्सेन। इसमें नंबर ऑफ आइसोमर्स कैसे निकालेंगे, 2 raised power 6 कार्बन से 6 minus 4 plus 1, दैट इज 2 raised power 2 plus 1, दैट इज 5 निकल करके आए। नेक्स्ट इज हमारे पास है अब C7H16, that is number of isomers will be equal to 2 raised power 7 minus 4 plus 1, that is 2 raised power 3 plus 1, that is 2 to the 4 to the 8, 8 plus 1 is 9, तो 9 are there। अब वो 7 तक तो हो गए, because the formula applies up to 7। if you can check, the formula applies for how many carbons, from 4 carbon to 7 carbon। अब अगर कार्बन 8 वाला होगा या 9 वाला होगा तो आपको क्या करना है, you have to add 1। आपको क्या करना है, ये जो 9 है फॉर 8, फॉर कार्बन 8, फॉर्मूला अप्लाइज 2 raised power n minus 4 plus 2। अभी तक आप करते थे +1 फार्मूला में ऐड, अब 2 करेंगे। फॉर 9 यू विल ऐड 1 मोर, दैट इज 2 raised power n minus 4 plus 3। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। तो कितने निकल करके आएंगे, ये निकल करके आएंगे 2 raised power 8 minus 4 plus 2, that is 2 raised power 4 plus 2, that is equal to 2 2s are 4 2s are 8, 4 4s are 16 plus 2 is 18 आइसोमर्स निकल करके आए। अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ निकलेगा 2, 9 कार्बन से 9 minus 4 is 5 plus 3, वो निकल करके आते हैं 35। कैसे, आप बेसिकली करेंगे 2 multiply 5 times, 2 2s are 4 4 4s are 16 16 2s are 32 32 plus 3 is 35। अब अगर कार्बन नंबर 10 होंगे तो इन सबको ऐड करना है आपको, यू हैव टू ऐड देम ऑल, 35 plus 18 plus 9 plus 5 plus 3 plus 2 plus 1 plus 1 plus 1, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दिए हैं। तो ये सारे आइसोमर्स जब आप जमा करेंगे तो कार्बन नंबर 10 वाला जो है, जो कार्बन 10 वाला होगा, कार्बन 10 वाला, तो उसके आइसोमर्स जो है दैट विल बी कम आउट टू बी 75। ये आपको याद रखना है। So I hope you understand how you can calculate the number of isomers and how you can identify these isomers। आपको 3 कंडीशंस याद रखने हैं। मदर चेन डिफरेंट होना चाहिए, दे मस्ट बिलोंग टू सेम क्लास। अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसका पोजीशन भी फिक्स्ड होना चाहिए। एंड दिस अप्लाइज टू ऑल। ये जो फॉर्मूला है, दिस डोंट अप्लाई टू जस्ट अल्केन्स, दे अप्लाई टू एवरीथिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास होगा, करना क्या है, सपोज आपके पास ये वाला है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 OH, ये अल्कोहल है। इसके कितने आइसोमर्स निकल करके हैं, चेन वाले। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू कंसिडर दिस OH एज H। तो ये बनेगा ब्यूटेन। ब्यूटेन में कितने होते हैं, ब्यूटेन में होते हैं 2, तो इसमें भी 2 होंगे चेन आइसोमर्स। 4 ही कार्बन हैं तो 2 होंगे। सीधी सी बात है। जो फंक्शनल ग्रुप आपके पास होगा, जो फंक्शनल ग्रुप आपके पास होगा तो वो कंसिडर करना है आपको हाइड्रोजन, फिर नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से आप देख सकते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास ये होगा, सपोज आपके पास है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। तो ये अल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे है, अल्डिहाइड ग्रुप। ये अल्डिहाइड ग्रुप आप कंसिडर कीजिए हाइड्रोजन। अब कितने कार्बन बचे, 1 2 3 4 5 कार्बन में क्या होता है, 3 होते हैं
आई टोल्ड यू 3 होते हैं, एक तो हो गया नॉर्मल वाला, दूसरा आइसो वाला, तीसरा नियो वाला, तो 3 जो है आइसोमर्स चेन निकल करके आएंगे इसमें। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। You can watch this video many times, move forward and backward to understand it completely. And if you like these videos, please do not hesitate to subscribe it. We'll come up with more such videos. Take good care of yourselves. Thank you very much.